today I will explain to you the difference between rotatory motion and circular motion. I have written everything about this, but first of all let me explain to you what is meant by rotatory motion and what is meant by circular motion. You also have to write the question about this in the end. What is the difference between circular motion and rotatory motion? In the end you will write the answer. I have written the answer also, but I have to explain to it that what is main difference, what is the major difference between these two motions. First of all, look at what is rotatory motion. Rotatory motion actually is the spinning motion of the body around its axis. Rotatory motion, when we define it, it is also written in your book. Rotatory motion is a kind of spin in which the body spins about its own axis. So when we define it, we define in such a way that in rotatory motion the body moves or spins. The body spins about its own axis. So that kind of motion is known as rotatory motion. If we study deeply, so notice now this thing, main difference between these two, rotatory motion and circular motion. I have written, in rotatory motion, the point at which the body goes around mean moves about. The point at which the body moves about, goes around or moves about, lies inside the body. Every time that point lies inside the body. So that kind of motion is known as rotatory motion. For example, top. I have drawn roughly diagram of steering wheel or wheel. Notice down, when top moves, it like spins its own axis, and every time this point, this is the central line, this axis, every time this center lies inside the body of the top. This center will not goes out of the body of the top. So that's why we say that top spins about its own axis like this. So that's why we say that top is in a rotatory motion, because in rotatory motion the body spins about its own axis. You can also define in that sense. Likewise, steering, when we move the steering like that and this sense, if we rotate completely, every time the line of axis about which the steering moves is inside the body of the steering. It is not outside. The central point, if you just consider this central point is always inside the body. This central axis inside the body. That's why centrals, if it comes in that sense, then central axis, this one, this axis and this axis. This axis always inside the body of the steering wheel. In this way, you can also think about the ball. When a player moves the ball on his own finger, when the player moves the ball on his finger, every time the axis about which the ball moves about is inside the ball. So that's why we say that ball which we rotate on our finger is a kind of rotatory motion. I think the concept should be clear to you now. What is meant by rotatory motion? Okay, now if we come to the circular motion, it is just the opposite of that. The point at which the body goes around means the body moves about, lies outside the body. That point will not lie inside the body. For example, look at motion of earth around the sun. Sun is here, earth is here. The point, this is a point center. The center is not inside the earth. The center of, because earth is revolving around the sun, the center is the earth, the center is the sun, center is the sun, and sun is outside the earth. So that's why earth is a kind of circular motion. So that's why it also complete your definition. The point at which the body goes around lies outside the body. Look here, the point sun, outside the earth. It is not inside the earth. So that's why this kind of motion is circular motion. And also the motion of a toy train. Suppose here is a toy train moving like this, and here is the point at which the toy train is moving. So that is also the example of circular motion. In the same sense, motion of electron around its nucleus. Suppose it's an electron, this is the nucleus. So electron also moving around, but the center of the electron is not inside the center, inside the central point. So that's why this is a kind of motion of circular. So I think the concept should be clear to you. Let me explain briefly in Urdu.
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ही आता होता है कि आप डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है, क्या डिफरेंस है सर्कुलर मोशन में रोटेटरी मोशन में। ये बात आपने याद रखनी है कि जो रोटेटरी मोशन होती है वो हमेशा स्पिनिंग मोशन होती है, उसमें बॉडी स्पिन करता है अपने ही एक्सिस के ऊपर। जैसे कोई सपोज के आदमी अपने ही एक पाँव के ऊपर रोटेट डांस करता है, एक ही पाँव के ऊपर, तो वो भी रोटेटरी मोशन में आ जाएगा क्योंकि वो अपने ही एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है। तो जो स्पिनिंग मोशन होती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसको हमने एनालाइज किया हुआ है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो रोटेटरी मोशन होती है उसमें वो पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव करता है वो हमेशा बॉडी के अंदर ही रहता है, वो बॉडी के बाहर नहीं जाता, इसलिए हम उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब टॉप लट्टू, उसकी एग्जांपल देखें, जब उसको हम घुमाते हैं तो वो मूव करता है अपने ही एक्सिस के ऊपर। ये उसका एक्सिस है, ये सेंट्रल पॉइंट है, पहले ये सेंटर होगा फिर ये मतलब कि ये कोई सेंट्रल एक्सिस बन जाएगा। वो अपने ही एक्सिस के ऊपर हर वक्त मूव करता रहता है, स्पिन करता रहता है। तो इसलिए इस किस्म की मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन है कि उसका सेंट्रल पॉइंट उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। इस तरह से अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो जो स्टीयरिंग व्हील है एवरी टाइम उसका जो सेंटर है वो स्टीयरिंग के अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता। उसका हर पार्ट जो है, ये हर पार्ट उसका ये एक्सिस है, इसके अंदर ही है, जिसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो उस बॉडी के अंदर ही है, बाहर नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं वो रोटेटरी मोशन है। ऐसे ही अगर आप बॉल को बनता को घुमाता है, जो प्लेयर बॉल को अपनी फिंगर के ऊपर घुमा रहे होते हैं, तो बॉल जो स्पिन रोटेट करता है, तो उस बॉल का हर एक्सिस के अबाउट, उसका जो एक्सिस लाइन होती है उस एक्सिस के ऊपर ही उसका हर बॉडी जो है मूव कर रहा होता है। मतलब कि हर पॉइंट जो होता है उसका बॉडी का सेंटर में ही होता है। तो वो एग्जांपल भी आपकी इसी में ही आएगी रोटेटरी मोशन में। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन, बहुत ही क्लियर है। सर्कुलर मोशन इसका ऑपोजिट है, यानी द पॉइंट एट विच द बॉडी गोज अराउंड लाइज आउटसाइड द बॉडी। अब वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी मूव करता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई है सन और अर्थ की। सन देखें, सन यहाँ पे है, अर्थ इसके अबाउट रिवॉल्व कर रही है। अब ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो सन अब सेंटर है। सन जो है वो इस अर्थ के अंदर तो नहीं है, वो बाहर है। इसका मतलब ये सेंट्रल पॉइंट अब ये है, ये अर्थ के अंदर नहीं है, अर्थ के बाहर है, इसलिए हम इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन है। ऐसे इसी एग्जांपल को आप टॉय ट्रेन से भी ले सकते हैं। टॉय ट्रेन सपोज कि अर्थ की जगह टॉय ट्रेन रख लो और ये पॉइंट आपका सेंटर होगा जिसके अबाउट वो टॉय ट्रेन जो है मूव करेगी। तो तब भी अब गौर करो तो उसका सेंटर जो होगा वो टॉय ट्रेन के अंदर नहीं है, इसलिए वो आपकी इसी काइंड में आएगी सर्कुलर मोशन में। तो इस तरह से बहुत और सी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक ऐसा सिचुएशन है कि अर्थ जो है वो स्पिनिंग रोटेटरी मोशन भी करती है। वो कैसे? जब अर्थ जो है वो आपको पता है कि जब अर्थ रोटेट भी कर रही होती है, वो जब सूरज के अबाउट रिवॉल्व करती है साथ साथ स्पिन भी करती है, तो अपने एक्सेस के अबाउट अर्थ की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन होगी, जो कि अर्थ जब यहाँ मूव करती है साथ साथ वो रोटेट भी करती चली जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें दिन और रात जो हमें नज़र आते हैं, दिन और रात बनते हैं, वो असल में अर्थ की स्पिनिंग की वजह से होती है। तो इसका मतलब है कि अर्थ में दो तरह की मोशन पाई जाती हैं, सर्कुलर मोशन भी होती है। उस वक्त सर्कुलर मोशन हम कहेंगे जब हम उसको सन के लिहाज से देखेंगे, सन जो होगा उसका सेंटर होगा, अर्थ के अंदर नहीं होगा, उस वक्त हम कहेंगे कि ये मोशन जो है अर्थ की वो है हमारी सर्कुलर मोशन। तो लेकिन जब हम अर्थ की मोशन को साथ हम ये भी कंसिडर करेंगे कि वो स्पिन भी कर रही होती है साथ साथ मूव करते करते, तो अपने ही एक्सेस के ऊपर जो उसकी मोशन होगी दैट मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। ओके, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डिफाइन एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस। अब मेरा ख्याल है कि इतनी डिस्कशन के बाद आपको एक्सिस का तो पता चल ही गया होगा कि एक्सिस क्या है। एक्सिस बेसिकली इज अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट। एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट। एक वो लाइन जिस लाइन के अबाउट को बॉडी रोटेट करता है उसको एक्सिस कहते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लो, जो टॉप है ये लाइन है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो ये लाइन इसका हो जाएगा एक्सिस। इस तरह से स्टीयरिंग व्हील में अगर वो पहले इधर मूव कर रहा है, स्टीयरिंग को यूँ घुमा रहे हैं, तो ये उसका एक्सिस हो जाएगा। जब वो ऊपर आएगा ये वाला हिस्सा, तो ये एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह से जो व्हील मूव कर रहा होता है, व्हील का भी इस तरह से इस कांडम में आप ले सकते हैं कि जिस लाइन के अबाउट वो मूव करता है वो उसका एक्सिस होता है। तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन आपने इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेनी है कि व्हाट इज एक्सिस। या मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपने सिर्फ ज़हन में रखने हैं। दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। एक ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, इसका आपने आंसर बताना है। दूसरा है डिफाइन एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया एक्सिस क्या है। एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट, so that line is known as axis. That's all.